Hello friends, this is Shivam Dubey from English Kingdom, Katra Prayagraj. Welcome to the class. We are continue with English for KVS PGT for free. And in our previous class, we could complete a poem from Walt Whitman, and that was The Voice of the Rain. And today again, we have another poem in our study, and that is the work of Markus Natten and entitled Childhood. Somehow the psychology of childhood and transition from childhood to adulthood and the changes that occur during this process of changing of the time from childhood to adulthood. Everything has been very minutely observed by Markus Natten, and he could put it in the poem. So we will go through the elaborate discussion of the poem, and that would be Childhood from Markus Natten. But before that, we have to go through the question session from the former classes that we could learn. And good morning to every one of you. And here is the first question of the day. What's the name of the author who could write the poem, The Laburnum Top? What's the name of the author who could write the poem, The Laburnum Top? Okay, and we have certain answers there on the screen, and that goes with the reply of Sachin is followed by Devin, Vinita. They have answered it correct, and the right answer is Edward James Ted Hughes. Actually, with the title of his name, Ted Hughes. That's the real name of his, Ted Hughes. Okay, now I'll move with the next question. What's the name of the grandmother of Khushwant Singh, who is the source for the story, The Portrait of a Lady? What's the name of the grandmother of Khushwant Singh, who is the source for the story, The Portrait of a Lady? Okay, there are certain answers on the screen, and that's starting with the reply of Sachin is followed by Pradeep, not so Vinita. They have answered it correct, and the right answer is Lakshmi Devi. That's good. Lakshmi Devi was the name of the grandmother of Khushwant Singh, and she becomes the source for the story, The Portrait of a Lady. What's the name of the poet who wrote the poem entitled The Portrait of a Lady? What's the name of the poet who wrote a poem entitled Portrait of Lady? I repeat the question. What's the name of the poet who wrote the poem The Portrait of Lady? That's very much similar to the title of Khushwant Singh for the story The Portrait of Lady. And we have the answer there on the screen from Sachin. He's answered it correct. And the right answer is Thomas Stance Eliot.
that is T.S. Eliot. Exactly, Sachin. Is followed by Pradeep. And now it's a Vinita. Nidhi, she has also answered it correct. And the right answer is Thomas Stans Eliot. Okay, going with the next. Good morning, Nidhi. Going with the next question. What's the name of the island where the narrator with his family stays in the story, We Are Not Afraid to Die? What's the name of the island where the narrator stays with his family in the story, We Are Not Afraid to Die? And we have the answers there on the screen. Good morning, Kalpana. Hope you are well. And here is answer coming from Kalpana. Oh no, Vinita, try to understand. My question is about island, not the name of the boat. Okay, now it's Nidhi. She is followed by Pradeep. And the right answer is Isle Amsterdam. Exactly. Isle Amsterdam is the name of the island where the narrator with his family could find a shelter in the story, We Are Not Afraid to Die. Okay, going with the next. What was the name of the father of Tut in the story? Discovering Tut, the saga continues. What was the name of the father of Tut in the story? Discovering Tut, the saga continues. And we have some answers there on the screen. And we go with the reply of Sachin. Good morning, Santosh. And they have all answered it correct. The right answer is Amenhotep IV. Exactly, it's the Amenhotep IV, who was the father of Tut from the story. Discovering Tut, the saga continues. And right, we move with the next. What's the name of the god whose worship Amenhotep III started? Amenhotep IV started actually. What's the name of the god whose worship Amenhotep started? What's the name of the god whose worship Amenhotep started? You know, he changed his religion or his worshipped god, and away from his own father Amenhotep III started. Exactly, we have some answers there on the screen, and that starts with the reply of Vinita. She is followed by Devin. Now Kalpana, they have answered it correct. Now Sachin, that's the god Aten, that was a kind of sun disk. His worship he started there. Okay, moving with the next. Who stated in Discovering Tut, I didn't sleep last night, not for a second? I repeat, who stated in Discovering Tut, I didn't sleep last night, not for a second? I didn't sleep last night, not for a second. Who stated in the story, Discovering Tut, the saga continues? I repeat, who stated the statement, I didn't sleep last night, not for a second, from the story, Discovering Tut, the saga continues?
And we have no answer there on the screen. Actually, it's a Zahi Hawass who stated by the end of the story that he could not sleep the last night throughout the research on the body and mummy of Tut actually. Okay, going with the next. What's the name of the poem that has the line, I repeat, what's the name of the poem that had the line, the sea holiday was her past, mine is her laughter. The sea holiday was her past, mine is her laughter. Which work has this line? I repeat, which work has the line, the sea holiday was her past, mine is her laughter? Which poem has this line? And we have the answer there on the screen, coming from Sachin, is followed by Gyaneshwar, Devin, Nidhi, Pradeep. They have answered it correct, and the right answer is a photograph. Okay, now Kalpana has also answered. Good morning, Gyaneshwar. They have all answered it correct. The right answer is a photograph from Shirley Tolson. They have, that's the poem which has the line, the sea holiday was her past and mine is her laughter. Now I'll move with the next poem, next question. What's the name of the boat which the narrator carries in the story, We Are Not Afraid to Die? What's the name of the boat that the narrator carries in the story, We Are Not Afraid to Die? Okay, and we have the answers there on the screen. That starts with the reply of Gyaneshwar, is followed by Sachin, Kalpana, Vinita, Nidhi, Pradeep Kumar. They have all answered it correct. The right answer is wave walker. Okay, moving with the next. Which bird has been mentioned in the poem, The Laburnum Top? Which bird has been mentioned in the poem, The Laburnum Top? Okay, again we go with the answers there on the screen. Starting with the reply of Sachin. He is followed by Gyaneshwar, Nidhi, Kalpana. They have all answered it correct. The right answer is goldfinch, as a bird mentioned in the poem, The Laburnum Top. And now Kalpana is also followed by Vinita, Pradeep, Devin. They have answered it correct to be goldfinch. Okay, going with the next. What's the time setting of the poem, The Laburnum Top? What's the time setting of the poem, The Laburnum Top? Time setting of the poem, Laburnum Top. And we have certain answer there on the screen, coming from Sachin, is followed by Gyaneshwar, Nidhi, Devin, Kalpana, Pradeep. They have all answered it correct. The right answer is September. Much better. It's the afternoon of a September. And that is September. That is afternoon actually. So we have the time setting of the poem, that's Laburnum Top. Okay, going with the next. Which figure of speech has been used in the line, she launches away towards the infinite? She launches away towards the infinite. That's a line from the poem, The Laburnum Top.
Which figure of speech has been used here? She launches away towards the infinite. Which figure of speech has been used in the poem? She launches away towards the infinite, and we go with the answer. Okay, so no, Kalpana, it's not hyperbole. Okay, so right answer is from Sachin. He's answered it correct, to be metonymy. Exactly. Now Vinita and Nidhi, they have also answered it correct, to be metonymy. Okay, in which, okay, when was the poem The Voice of the Rain published first? When was the poem The Voice of the Rain published first? And we have the answer. The Voice of the Rain, as a poem of Walt Whitman, was published in 1885, as the reply is here from Sachin, and he is followed by Nidhi, Kalpana, Vinita, Pradeep. They have all answered it correct, and the right answer is 1885. Okay, that's good one. 1885 is the time when it was composed and first published actually. Okay, now I'll move with the last question of the day. What's the duration of American Civil War that becomes the material for Walt Whitman and let him be declared the voice of America? What's the duration of American Civil War? Okay, and we have the answers there on the screen with the replies of Sachin. Just check your answer. My question is American Civil War. It's quite lengthy. You have given the duration of the writing of and actually 9 editions of The Leaves of Grass. Question is about American Civil War, and we have the answer from Pradeep, and exactly going with Vinita, Kaneshwar, Nidhi, Kalpana. Okay, they have answered it correct. That's roughly taking from 1861 to 1865 or 1862 to 1865. So much better to go with 1861 to 1865. That is the time of American Civil War. Well, one more question before the last one was wrong. So going with one more question. Okay. Well, what's the name of the scholar who called Walt Whitman his America? Radhe Radhe Tulsi. What's the name of the scholar who called Walt Whitman that he is America? Okay, and we have the certain answers there on the screen, and we have the reply from, okay, and starting here with Sachin, followed by Kalpana, Vinita, Nidhi, Pradeep, Gyaneshwar, Devin. They have all answered it correct. The right answer is Ezra Pound. Exactly. It was Ezra Pound who called him to be America's poet, and he is America. Means you cannot expect much better tribute to be paid to a poet who can be synonymous for his country. Okay, now it's time for us to move to the poem that is Childhood.
And as I told you in the introduction, childhood is a poem that shows the transition from childhood to adulthood. So it shows transition or changes that one faces from childhood to adulthood. Okay, lots of things change, and everybody has his own or personal experience regarding such beautiful time like childhood. We can include the great poets like William Wordsworth as well. In his Ode on Intimation of an ode style, he could go with the same childhood. There are other poems like Child by Sylvia Plath. She also had the love for children and childhood. Means great poets had always a thinking over how the things change for a person as a child and for a person as a man. Means lots of things. And it's, I must say that it's not just the experience of a poet, it's the experience of every one of us actually. Simply you can find yourself experiencing something that's quite different from the experience of other. And definitely you will find some similarities as well, but individual experiences are quite different. But one thing that every one of us notice actually, the meaning of things changes according to our age. How do we look at certain things in our childhood? How do we look at a thing during our adulthood? And how do we look at a thing during our old age? These ages actually, the times that we live reflect the things, how we actually are actually in the same situation, you can say. So what I want to tell you, that this poem Childhood by Markus Natten is actually a poem that reflects the transition of a person from childhood to maturity or adulthood, and how the things changes in the life of a man when he becomes young. God bless you, Sarita. And the poem is actually in 4 stanzas. There are 4 stanzas used in the poem, and the stanza actually, first 3 stanza go with a 6 line in each, and the last stanza is a quatrain. So simply you can divide these 4 stanzas in 2 parts, like you go with sestet and quatrain. So first 3 stanzas means 1, 2, 3, and the last stanza, that is the 4th one, is a quatrain. So simply, if you go with the length of the line, there are 22 lines in the poem. 22 lines in all in the poem. You will find certain thing, and that is actually the variation in the length of the line. अगर आप पोएम को पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि जो यहाँ पर लाइंस दी गई हैं उनमें आपको वेरिएशन मिलेगा. Most of the time it is iambic meter that he has used. The poem is written in iambic meter. Try to understand. मैंने यहाँ पर iambic pentameter नहीं कहा है, मैंने यहाँ पर iambic meter कहा है, क्योंकि इसमें diameter, trimeter,
टेट्रामीटर और पेंटामीटर, हेक्सामीटर सब यूज किए गए। मींस अगर इसमें देखेंगे तो आपको डायमीटर मींस आपको 2 मीटर का भी कॉम्बिनेशन यहां पर मिलेगा, वो भी आयाम्बिक है। ट्रायमीटर, ये भी आयाम्बिक में मिलेगा आपको। टेट्रामीटर, ये भी आपको मिलेगा। पेंटामीटर, यह भी इसमें है। एंड हेक्सामीटर मींस ये सारे मीटर्स आपको पोएम में मिलते हैं। रिमेंबर, ये सारे के सारे क्या हैं? आयाम्बिक। लेट मी एक्सप्लेन यू इन अ सिंपल वे। आयाम्बिक इज एक्चुअली syllabic pattern where a weak sound is followed by strong. That combination, that pattern is called to be an iambic meter. So the pattern is weak is followed by strong. Actually that's related to sound. जब कोई हम शब्द हम लोग प्रोनाउंस करते हैं तो कभी कभी हम शब्द को शॉर्ट में स्ट्रेस करते हैं और कभी कभी हम उसको डेप्थ में ले जाते हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस्ड रखते हैं। तो अगर ज़्यादा स्ट्रेस्ड हो गया तो हम उसको कहते हैं स्ट्रांग साउंड है, और कम स्ट्रेस्ड हो गया तो हम उसको कहते हैं वीक साउंड है। तो वीक और स्ट्रांग को मिला करके एक आयाम्बिक मीटर मिलता है। आयाम्बिक मीटर मीन्स 2 syllables इज इक्वल टू 1 मीटर। 2 syllable is equal to 1 मीटर। ये आयाम्बिक का पैटर्न होता है। 2 syllable इसी तरह से होते हैं। वीक स्ट्रांग, ये 2 syllable हो गए 1 मीटर, फिर वीक स्ट्रांग, फिर 2 syllable, फिर से 1 मीटर। अब इस तरह से अगर डायमीटर की बात करें तो इसका मतलब होता है 2 मीटर। तो यहां पर आपको 2 मीटर मिलेंगे। ट्रायमीटर का मतलब होता है 3 मीटर्स, इसमें आपको 3 मीटर मिलेंगे। यहां टेट्रा में होता है 4 मीटर, यहां पर आपको 4 मीटर्स मिलेंगे। पेंटा सबसे पॉपुलर मीटर फॉर्म है आयाम्बिक के साथ, तो दैट गोज फॉर द 5 मीटर। और हेक्सा जो होता है वो 6 के लिए आता है, एंड दैट्स 6 मीटर। कैलकुलेशन अगर मीटर से syllable में जाता है तो सिंपल है, आप बड़ी इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। अगर हम syllable में जाते हैं तो मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाइड 2 इज इक्वल टू 4। यहां पर 4 syllable आपको मिलेंगे, यहां 6 syllable मिलेंगे, यहां 8 syllable मिलेंगे, यहां 10 syllable मिलेंगे, यहां 12 syllable मिलेंगे। तो syllabic अगर पैटर्न चलते हैं तो इस पोयम में एक वैरायटी अपने आप में एक यूनिक मेट्रिक फॉर्म को यूज करती है। ऑलमोस्ट जो स्टेंजा हैं उसमें आप देखेंगे कि आयाम्बिक डायमीटर, ट्रायमीटर, टेट्रामीटर, पेंटामीटर और हेक्सामीटर का यूज किया गया है। दैट इज यूनिक अबाउट अ पोयम। इस पोयम में कुछ जगहों पर आप वेरिएशंस और भी ज्यादा देख सकते हैं, और अगर हम मीटर में चलें तो केवल ऐसा नहीं है कि एक ही टाइप का मीटर, कहीं कहीं पर ट्रोशेक भी यूज हुआ है, बट प्राइमरली आयाम्बिक का यूज किया गया, आप उसको ध्यान में रखिए। फिगर ऑफ स्पीच के रूप में अगर देखा जाए तो चाइल्डहुड को ही पर्सनिफाइड किया गया है, पर्सनिफिकेशन का यूज किया गया है फिगर ऑफ स्पीच के रूप में। और ये पर्सनिफिकेशन में चाइल्डहुड जो वर्ड इसमें यूज किया गया है उसे ही पर्सनिफाइड किया गया है। रिफ्रेन का भी यूज इस पोएम में किया गया है। रिफ्रेन क्या होता है? रिफ्रेन का मतलब होता है रेपिटेशन ऑफ द सेम लाइन। रेपिटेशन ऑफ द लाइन, किसी लाइन को बार बार अगर यूज किया जा रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्रेन। गुड मॉर्निंग मनशा। तो रिफ्रेन का यूज
इस पोएम में किया गया है। और स्पेशली अगर आप फर्स्ट 3 स्टेंजाज में चलेंगे तो आपको हर स्टेंजा के एंडिंग में आप पाएंगे और शुरुआत में भी आप पाएंगे कि लगभग सेम ओपनिंग है। व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो, ये ओपनिंग लाइन है। वाज दैट द डे, ये एंडिंग लाइन है। ये लगभग सारी स्टेंजाज में आपको मिलेगा। और रही बात लास्ट की, तो लास्ट में ओपनिंग लाइन व्हेन डिड माई चाइल्डहुड गो तो सेम है, बट एंडिंग लाइन अलग है। दैट्स ऑल आई नो करके एंड होता है, तो वहां पर डिफरेंस मिल जाता है, बट रेफरेन का यूज किया गया है यहां पर। इसके अलावा यहां पर कई जगह पर रेटोरिक क्वेश्चन भी किया गया है। रेटोरिकल क्वेश्चंस भी किए गए हैं। एक्चुअली रेटोरिकल क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है? जब हमारा क्वेश्चन कुछ ऐसा हो जो खुद में रिप्लाई हो। मतलब ये क्वेश्चन स्ट्रक्चर में होता है, बट एक तरह से ये रिप्लाई होता है, जवाब देना होता है। जैसे कभी कभी हम लोग ऐसे पूछ लेते हैं ना, क्या मैं डेड हूं? मैं जिंदा हूं ना, मैं ये कहना चाहता हूं मैं जिंदा हूं, तो मैं कहता हूं क्या मैं डेड हूं? तो एक्चुअल में वो क्वेश्चन देखने में तो लगता है कि क्या मैं डेड हूं, ये तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बट एक्चुअली क्वेश्चन ही होता है, वो एक तरह से रिप्लाई है ना। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होता है उसको हम लोग रेटोरिकल क्वेश्चन कहते हैं। तो रेटोरिकल क्वेश्चन का भी यहां पर यूज किया गया है कई जगहों पर। और इसी तरह से इन्होंने मेटाफर का भी यूज किया है। मेटाफर एक बहुत ही पॉपुलर फिगर ऑफ स्पीच है, स्पेशली कंपैरिजन विदाउट, लाइक, सो, एज, कंपैरेटिव जो वर्ड्स होते हैं। और यहां मशीन के साथ जो वर्ड मशीन है थर्ड स्टेंजा में, उसके साथ यूज किया गया है मेटाफर का। एपीग्राम का भी खूबसूरत यूज किया गया है। एपीग्राम जो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच होता है जो थोड़ी सी लाइन में बड़ी बात कह जाता है। जैसे यहां पर ये लाइन दिया गया है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। ये जो लाइन है वो बहुत कुछ आपको याद दिलाएगी विलियम वर्ड्सवर्थ की वो लाइन जो उन्होंने दी रेनबो से अपने लिया हुआ था, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन। द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन में भी हम एपीग्राम के पैटर्न को पाते हैं। और वही पॉइंट यहां पर मार्कस नैथन ने अपनी लाइन में यूज किया है, दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। एपीग्राम का एग्जाम्पल लिया हुआ है। इसके अलावा इस पोयम में एनाफोरा का भी यूज किया गया है। एनाफोरा को भी पोयम में रखा गया है। एनाफोरा के साथ साथ हम आयरनी का भी यूज करते हुए देखेंगे। कई जगहों पर पोएट आयरनी का भी यूज करते हैं। और इस तरह से आयरनी के यूज को देखते हुए, आयरनी का मतलब होता है एक तरह से व्यंग होता है। और जैसे हमने आपसे कहा कि इसमें कुछ बातें व्यंगात्मक भी कही गई हैं, तो दैट इज आयरनी। आयरनी का भी यूज किया गया है। आयरनी। एनाफोरा रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस और क्लॉजेस होता है। यह भी रेपिटेशन होता है। रेपिटेशन ऑफ फ्रेजेस और क्लॉजेस होते हैं इन द बिगिनिंग। जब कोई लाइन शुरू होती है तो उसकी शुरुआत में अगर किसी चीज को रिपीट किया जाता है तो देन इट इज एनाफोरा। और आयरनी जो होती है वो जो मेन मीनिंग और जो उसकी हिडन मीनिंग होती है, बोथ आर डिफरेंट इन देयर यूज। तो इस तरह से आप कई लिटरेरी डिवाइसेस का यूज होता हुआ पाते हैं। एंड व्हेन यू ट्राई टू एक्सप्लोर द राइमिंग पैटर्न इन द पोएम, यू विल फाइंड द पोएम इज इरेगुलर इन राइमिंग पैटर्न। इरेगुलर rhyming pattern
इसमें यूज किया गया है, इस पोयम में इरेगुलर राइमिंग पैटर्न का यूज किया गया है। मतलब कोई राइमिंग पैटर्न इसमें आपको नहीं मिलेगा, हर स्टेंजा में लगभग अलग राइमिंग पैटर्न है। वैसे तो हम लोगों ने स्टेंजा फॉर्म के रूप में बात कर लिया था कि यहाँ सेस्टेट यूज किया गया है, मीन्स 6 लाइन इन ईच स्टेंजा, जो पहले 3 स्टेंजास में देखने को मिलता है। और क्वाट्रेन का भी यूज किया गया है, 4 लाइन्स इन ईच स्टेंजा, तो वो लास्ट स्टेंजा जो 4th है, क्योंकि टोटल यहाँ पर 4 स्टेंजास का यूज किया गया है। तो पोएट ने एक्चुअली एक तरह से अपने स्टेंजास के थ्रू, अपने पोएम के थ्रू एक बात बताने की कोशिश की है कि जो ये चाइल्डहुड का इनोसेंस होता है ना, वो धीरे धीरे मैच्योरिटी में जब पहुंचता है, जब वो अपने पीक पर पहुंचता है जहां उसको मैच्योरिटी को शो करना होता है, वर्ल्ड को अंडरस्टैंड करने का एक एक्सप्रेशन लेकर आना पड़ता है, तो वहां पर देखने पर यह मिलता है कि वो जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड का इनोसेंस कहीं ना कहीं गायब हो जाता है। और जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि एक बड़ी फेमस लाइन है विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का, द चाइल्ड इज फादर ऑफ द मैन, वहां पर एपिग्राम का यूज किया गया है। लगभग वैसी ही फीलिंग, वैसा ही सेंस मार्कस नेतन ने चाइल्डहुड में देने की कोशिश की है कि किस तरह से वक्त के साथ जब हम लोग आते हैं और अपनी लाइफ को जीना शुरू करते हैं, तो ये जो लाइफ होती है हमें एक चेंज्ड फॉर्म में मिलती है। मतलब बचपन में जो हमने देखा होता है ना, वो लाइफ तो होती ही नहीं है। ये तो मैं जैसे शुरू में कहा था कि ये हम सब का अनुभव है कि जिंदगी को जो हमने बचपन में देखा था वो तो ऐसा लगता है जैसे वो सपना था, एंड जो हम आज जिंदगी को जी रहे हैं वो लगता है कि इट्स रियली वेरी टफ, वेरी हार्श, and seems to be impossible to be living in such a very hard and tough time. But yes, in childhood it seemed like it's a dream to live in a young age, adulthood. और वो बचपन के जो ख्वाब थे ना, वो जो बड़े होते हैं सब टूट जाते हैं। I must remind you a beautiful poem from P.V. Shelley as well, and that's Ode to the West Wind, if you remember. And there as well the poet has explored the similar idea. How the things and the perception of a man towards things change, how the life of a man changes when he is during his childhood and when he is living his life of adulthood. Means great difference. You cannot just, sometimes the things that come in our life now, we are not able to imagine, है ना। जिंदगी में कभी कभी ऐसे हिस्से भी दिखने को मिल जाते हैं जिसको एक्चुअल में हम इमेजिन ही नहीं कर पाते हैं कि ऐसा भी कभी रहा होगा या ऐसा भी कभी हो सकेगा। That's the thing that seems to be impossible for us even to imagine. और यहाँ पर वो सारी बातें आपको मिलेंगी। पीबी शेली को आप यहाँ देख सकते हैं, सिल्विया प्लाथ को आप देख सकते हैं, चाइल्ड, उन्होंने जो पोएम अपनी लिखी हुई थी उनके, और थोड़े बहुत एक्सपीरियंस आप विलियम ब्लेक के भी ले सकते हैं। विलियम ब्लेक ने भी अपने सॉन्ग ऑफ इनोसेंस में कई जगहों पर चाइल्डहुड की बात की थी। विलियम ब्लेक ने, उनकी एक पोएम थी दैट्स ऑगरीज ऑफ इनोसेंस में उन्होंने चाइल्डहुड को दिखाया हुआ है। तो बड़े पोएट हैं विलियम ब्लेक, वो ऑगरीज में बात करते हैं चाइल्डहुड के। सिल्विया प्लाथ, लास्ट पोएम जो हम लोग टेड ह्यूज की डिस्कस कर रहे थे, द लेबनन टॉप, तब भी डिस्कस किया, शी वॉज अ ग्रेट पोएटेस ऑफ अमेरिका। और फिर हम लोगों ने बात किया कि विलियम वर्ड्सवर्थ, उनकी ऑलमोस्ट सबसे बड़ी पोएम के रूप में एक मानी जाती है द रेनबो, और साथ साथ ओड ऑन द इंटीमेशन ऑफ इमॉर्टैलिटी। सारी जगह पर उन्होंने चाइल्डहुड की बात की, और चाइल्डहुड में जो पावर और स्टैमिना, विजन पावर स्पेशली होती है, वो कहीं पर देखने को नहीं मिलती है। तो समवेयर वी ऑल एक्चुअली रिग्रेट, और अगर आप खुद से भी पूछेंगे ना, तो आपको भी यही लगता है कि काश मेरा बचपन वापस आ जाता। अब फिर से वो बचपन को जीना चाहते हैं। बचपन में थे तो हमें हमारी युवावस्था बड़ी अच्छी लगती थी, तब हमको लगता था काश हम जल्दी से बड़े हो जाएं, पापा की तरह दिखना शुरू कर दें, भैया की तरह रहना शुरू कर दें, दीदी की तरह घूमना शुरू कर दें, और एक्सेट्रा मेनी मेनी मोर थिंग्स। और वो फ्रीडम, वो आज़ादी, सब चीज़ ऐसा लगता था सपने जैसा। और जब बड़े हुए तो लगा कि नहीं, ऐसा कुछ है ही नहीं। और फिर वही चीज़ें
हम पलटकर अपनी जिंदगी में वापस देखते हैं और फिर से मन करता है कि काश हम अपने चाइल्डहुड में चले जाते, काश हम बचपन में चले जाते। दिस इज व्हाट द होल लाइफ इज, दिस इज हाउ वी लिव थ्रू आउट आवर लाइफ। एंड लेट मी रिमाइंड यू द ब्यूटीफुल लाइन फ्रॉम मैकबेथ, टुमारो टुमारो एंड टुमारो, दिस इज व्हाट वी डू एंड फाइनली वी रीच टू द लास्ट रिकॉर्डेड सिलेबल ऑफ टाइम, है ना। ये जिंदगी का दस्तूर ही कुछ ऐसा है कि हमें हमेशा अच्छी चीज़ों की ओर आकर्षित करता है, और जब हम उन अच्छी चीज़ों के पास पहुंचते हैं ना, तब हमें मालूम चलता है कि एक्चुअली ये अच्छी चीज़ें है ही नहीं, जो हम सोच कर आए थे वो तो यहाँ है ही नहीं। लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए जो एक लालच चाहिए, जो एक पैशन चाहिए, जो एक जुनून चाहिए, वो हमें ज़रूर एक ड्रीम के रूप में, एक सपने के रूप में ज़िंदगी देती रहती है। और शायद यही एक वजह है कि इतनी बड़ी ज़िंदगी को हम टुमारो 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 करते हुए जीते चले आते हैं और लास्ट में हम अपने लास्ट रिकॉर्डेड टाइम में पहुंच जाते हैं। कि जिंदगी है, सबको नपी तुली मिली हुई है, किसी के पास ज़्यादा नहीं है, किसी के पास कम नहीं है, और जितना उस ऊपर वाले ने हमारे ऊपर मेहरबानी करके हमको दे दिया है, उतना ही जीवन यहाँ पर जीना है। तो एक्चुअल द पॉइंट इज कि हर वो चीज़ जो हमारे पास नहीं होती है, हर वो चीज़ जो हमारे पास थी और हमसे खो गई है, वो हमारे लिए खूबसूरत हो जाती है। पीवी शैली ने ही अपनी पोयम ओ टू ए स्काई लार्क में कहा था, वी पाइन फॉर व्हाट इज नॉट। मीन्स हमारी तो दस्तूरी कुछ ऐसी लिखी गई, हमारी जिंदगी ही कुछ ऐसी लिखी गई है कि हम तरसते ही उसके लिए हैं, तड़पते ही उसके लिए हैं, जो सच में हमारा है नहीं, जो हमारी है नहीं। और ये अगर आप शुरुआत में चलिए, क्रिश्चियनिटी में चलिए, तो क्रिश्चियनिटी की शुरुआत अगर देखा जाए तो जैसे दिखाया जाता है कि एडम और ईव ईडन में रहते हैं और सब कुछ उनके पास था, लेकिन एक फ्रूट ऑफ नॉलेज को उन्होंने टेस्ट नहीं किया था। दे पाइन फॉर दैट, और फिर फाइनल रिजल्ट आप जानते ही हैं, जो क्रिश्चियनिटी का मिथ है उसके अकॉर्डिंग। तो यहां पर भी कुछ न कुछ मार्कस नैतन ने उसी चाइल्डहुड को एडल्टहुड में कन्वर्ट होता हुआ देखते हैं, और कैसे एडल्टहुड से चाइल्डहुड को तरसते हुए देखते हैं नजरों से कि काश हम अपने चाइल्डहुड में रह गए होते। चलिए देखते हैं पोएम में। When did my childhood go? Was it the day I ceased to be 11? Was it the time I realized that hell and heaven could not be found in geography, and therefore could not be was that day? When did my childhood go? कि मेरा बचपना कब खत्म होगा? लोग दूसरों को बोलते हैं कि तुम्हारा बचपना जा नहीं रहा है, कब बड़े होगे? पोएट खुद पूछ रहे हैं कि मेरा बचपना कब खत्म होगा? Was it the day I ceased to be 11? तो क्या ये उस दिन होगा जब मैं 11 साल का हो जाऊंगा? क्या 11 साल के बाद मेरा ये बचपना खत्म हो जाएगा? Was it the time I realized that hell and heaven? तो क्या ये वो वक्त था जब मेरा बचपना खत्म हुआ, जब मुझे ये मालूम चला कि हेल भी है और हेवन भी है? मतलब जब मुझे ये मालूम चला कि अच्छा क्या होता है, बुरा क्या होता है। हेल स्टैंड्स फॉर एविल थिंग्स एंड हेवन स्टैंड्स फॉर द गुड थिंग। जब मुझे मालूम चला कि अगर मैं गुड थिंग्स करता हूं तो मुझे हेवन मिलता है, जब मैं एविल थिंग्स करता हूं तो मुझे हेल मिलता है, जब मैं अच्छी चीजें करता हूं तो मुझे रिवार्ड मिलता है, और जब मैं खराब चीजें करता हूं तो मुझे पनिशमेंट मिलता है। तो क्या जब मैंने ये समझना शुरू कर दिया कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है, क्या उस दिन मैंने अपना बचपना खो दिया? क्योंकि बचपना खोने का मतलब क्या है? बचपने को आप ऐसे समझ लो कि जब आप समझदार हो जाते हैं, गुड मॉर्निंग सना, जब आप समझदार हो जाते हैं तो आप अपना बचपना खो देते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं ना, वो समझदार होना ही नहीं चाहते हैं, क्योंकि द इनोसेंस दे हैव, द स्पिरिट ऑफ लाइफ दे हैव, दे डोंट वांट टू लूज एक्चुअली, एंड दिस इज व्हाई दे वांट टू कीप लिविंग दैट टाइम ऑफ चाइल्डहुड। तो कभी कभी बड़े हो गए फिर भी बचपन की शरारत करते रहते हैं, क्योंकि जिस दिन हम समझदार हो जाते हैं, हमें समझ हो जाती है क्या सही है क्या गलत है, क्या उचित है क्या अनुचित है, क्या हेल है क्या हेवन है, क्या गॉड है क्या डेमन है। बचपन में किसको ख्याल था? आपको मालूम था ईश्वर क्या होता है?
बचपन में तो लॉर्ड कृष्णा के घर में पोर्ट्रेट रखी है, स्टैच्यू रखी है, उसको हम अपना गुड़िया ही समझ के खेल लेते थे। कोई डर नहीं लगता था, क्योंकि हमें इसका डर ही नहीं था कि हम कुछ गलत कर देंगे तो लॉर्ड कृष्णा हमको पनिशमेंट देंगे। देखिए जैसे जैसे बड़े हुए, आज हम लोग दूर से ही लॉर्ड कृष्णा को प्रणाम करते हैं और चल देते हैं। उनको हम खेलते हैं, धक्का मारते हैं नहीं ना। तो ये जो समझ हमारे अंदर डेवलप हुई ना, हेल और हेवन की जो अंडरस्टैंडिंग आई हमारे अंदर, अच्छे और बुरे की जो अंडरस्टैंडिंग आई, तो क्या ये वो दिन था जब मुझे हेल और हेवन का फर्क समझ में आया, तब मैंने अपना बचपन खोया। कुड नॉट बी फाउंड इन ज्योग्राफी, एक ऐसी दुनिया जिसको हम ज्योग्राफी में तो कभी पा ही नहीं सकते। ज्योग्राफी में हेल कहां है, ज्योग्राफी में हेवन कहां है? हेवन इन द सेंस ऑफ जो ईश्वर की दुनिया की बात हम लोग करते हैं, वो जन्नत कहां है? गॉड ब्लेस यू मोहित। वो जन्नत कहां है जिसकी अक्सर बातें हमारे स्क्रिप्चर्स में हैं, धार्मिक ग्रंथों में हैं? वो हेल कहां है जिसकी बातें हमारे ग्रंथों में हैं? वो हमें दिखता नहीं है, लेकिन हमने हेल और हेवन को रियलाइज कर लिया। ज्योग्राफी में नहीं मिलता, फिर भी हमने हेल और हेवन को रियलाइज कर लिया। क्या ये वो दिन था जब मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया? क्या मैंने जब बचपना खोया तो ये वो दिन था जब मैंने हेल और हेवन को, जो ज्योग्राफी में नहीं पाए जाते हैं, इसके बावजूद हमने उसको महसूस किया? क्या ये वो दिन था? देयरफॉर कुड नॉट बी, वाज दैट द डे? और इसलिए मैं अब चाइल्ड नहीं रह गया, कुड नॉट बी। जो मैं था मैं नहीं रह गया, क्योंकि बचपन में भी कई बातें ऐसी होती हैं कि आपको बातों में यकीन नहीं होता है। जो आप देखते हैं उसको आप यकीन करते हैं। बचपन अगर आप खास तौर से एग्जामिन किए होंगे, ऑब्जर्व किए होंगे, तो आपने देखा होगा कि अगर किसी बच्चे से बोल दो कि बेटा वो चिड़िया है, बच्चा बड़े ध्यान से देखता है, अच्छा चिड़िया क्यों है? आपने बता दिया कि बेटा उसके देखो छोटे छोटे पैर है ना, तो ये नीचे जो चल रही है चींटी, ये भी चिड़िया है। आपने कहा नहीं बेटा चींटी है, चिड़िया नहीं। क्यों? इसके भी तो छोटे पैर हैं। मींस चाइल्डहुड में हम बातों को यूं ही नहीं एक्सेप्ट कर लेते, चाहे ईश्वर की बात हो चाहे किसी की भी बात हो। हम चाइल्डहुड में दिमाग लगाते हैं, तब हमें ना हेल की बात मालूम चल पाती है ना हेवन की मालूम चल पाती, क्योंकि हेल और हेवन तो दिखते ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हम बड़े होते हैं तो हमें हेल भी नजर आने लगता है, हेवन भी नजर आने लगता है। क्या वो कमबख्त वो दिन था जिस दिन मुझे यह समझ में आ गया कि हेवन क्या है, हेल क्या है? तब मैं बड़ा हो गया, तब मैंने अपने चाइल्डहुड को खो दिया। वाज दैट द डे? क्या सच में यही वो दिन था जब मैंने अपना सुनहरा बचपन खो दिया? Wanted my childhood go. कब ये मेरा बचपना चला गया? Was it the time I realized that adults were not all they seem to be? क्या ये वो दिन था जब मैंने ये रियलाइज किया कि एडल्ट वो नहीं होते हैं जो एडल्ट लगते हैं? Try to understand. क्या मेरे लिए बचपना खोना वो दिन था जब मैंने ये पहली बार रियलाइज किया कि एडल्ट होने का मतलब ये नहीं कि आप एडल्ट दिखो? जैसे भी मैं बात कर रहा था सॉरी, कि कई लोग बड़े हो जाते हैं, उम्र उनकी बड़ी हो जाती है, इसके बावजूद उनके अंदर वो मैच्योरिटी नहीं देखने को मिलती है। वो अपने बचपने को ही जीते रहते हैं और हम उस फर्क को देखते हैं। हम उस फर्क को देखते हैं। अगर हम वो फर्क देखना जान गए, अगर हम वो फर्क देखना जान गए, तो क्या ये वो दिन था जब मैंने अपना बचपना खोया? क्या ये वो दिन था जब मैंने बचपना खोया कि लोग बड़े हो जाते हैं फिर भी उनमें बड़ापन नहीं आ पाता, उनमें एडल्टहुड नहीं आ पाता, उनमें मैच्योरिटी नहीं आ पाती है?
इसका मतलब मैच्योरिटी का एज से, मैच्योरिटी का बॉडी से कोई रिलेशन नहीं। क्या जब मैंने ये डिफरेंस पहचाना, क्या जब मैंने ये अंतर पहचान लिया उस दिन में बड़ा हो गया? बात तो बहुत पॉइंट की है। अब इतनी समझदारी की कोई बात करेगा तो उसको हम बचपने में कैसे मानेंगे? तो शायद यही बचपना खो दिया। क्या मैं जब 11 साल का हुआ तब मैंने बचपना खोया? क्या मैंने जब ज्योग्राफी में न होते हुए भी हेवन और हेल को रियलाइज करना शुरू कर दिया, मतलब समझदार बन गया, क्या तब मैंने अपना बचपना खोया? क्या मैंने तब बचपना खोया? वॉज इट द टाइम आई रियलाइज्ड? क्या ये वो समय था जब मैंने महसूस करना शुरू कर दिया, महसूस करना शुरू कर दिया दैट एडल्ट्स वर नॉट ऑल दे सीम टू बी? ऑल दे सीम टू बी, जितने भी सीम टू बी दिखाई देते हैं, प्रतीत होते हैं, एडल्ट वर नॉट दे, वो सारे एडल्ट नहीं थे। होपफुली आप समझ गए होंगे कि राइटर यहां पर एडल्टहुड को एज के साथ या शरीर के साथ नहीं रियलाइज करा रहा। मतलब जिनको हम देखकर कहते हैं कि एडल्ट हैं, जब हम ये समझ जाते हैं कि एडल्ट दिखते हैं लेकिन एडल्ट ये है नहीं, इनमें मैच्योरिटी नहीं आई है, क्या जब मैंने ये रियलाइज करना शुरू किया तब मैंने अपना बचपना खो दिया? दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच्ड ऑफ लव, ये बड़े लोगों की दुनिया है। ये लव की बातें करते हैं और लव का भाषण देते हैं, उपदेश देते हैं, बट डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। फर्क है, ये लविंगली एक्ट नहीं करते। क्या खूबसूरत लाइन लिखा हुआ है, दे टॉक ऑफ लव एंड प्रीच ऑफ लव। ये लोग लव के बारे में प्रीच करते हैं, उपदेश देंगे, बड़ी बड़ी बातें करेंगे लव के बारे में, और लव को जीने की भी कोशिश करते हैं, बट कैसे? इमोशन की दुनिया में, रियल की दुनिया में नहीं, एक्ट नहीं करते हैं। कहते हैं ना, डिड नॉट एक्ट सो लविंगली। लेकिन जो इतने लव की बात करते हैं, प्रेम की बात करते हैं, इतने अच्छे से प्रीच करते हैं, वही लोग बहुत लविंगली लोगों के साथ पेश नहीं आते। वही लोग लोगों के साथ बहुत प्यार से बर्ताव नहीं करते हैं। Was that the day? सॉरी, क्या वो वही दिन था जो मैंने महसूस किया? ये फर्क समझिए, कोशिश करिए। ये दुनिया की दिखावटी भरी, जो बनावटी भरी जिंदगी है ना, उसकी ये बात कर रहा है कि लोग लव की बातें करेंगे, लव का उपदेश भी देंगे, लेकिन लव को जीते नहीं है। ये फर्क जब हमें समझ में आ जाता है ना, तो क्या तब हम बड़े हो गए? बचपन में तो यही कहा गया था ना कि सबसे प्यार करो, सबसे मिल के रहो। जब हम सबसे मिल के रहने लगे तो हमारे ही घर वालों ने हमको सिखाना शुरू कर दिया, ये इससे तुम्हें दूर रहना है, ये तुम्हारे साथ रहेगा, इसके साथ तुम रहोगे, इसके साथ प्यार से रहो, इससे दूर रहना, इससे बात नहीं करना, ये तो घर वालों ने ही सिखा दिया। जिन्होंने लव की बातें कही थी, प्रेम की बातें कही थी, साथ में रहने की बातें कही थी, उन्हीं ने नफरत करना सिखा दिया। क्योंकि इनके कहने, इनके उपदेश देने और इनके जीने के तरीके में बहुत डिफरेंस है। वो मां जो हमेशा कहती थी झूठ नहीं बोलना है, मां के लिए हमेशा सलामी है। मां जो कहती थी झूठ नहीं बोलना है, जाने कितनी बार सुना है खुद मां को पापा से झूठ बोलते हुए। दुनिया है, हमने महसूस कर लिया कि चाइल्डहुड मेरा वहीं खत्म हो गया। चाइल्डहुड मेरा वहीं खत्म हो गया जहां पर मैंने यह महसूस करना शुरू कर दिया कि दुनिया में बोलना कुछ और है और करना कुछ और है। क्या मेरा बचपना उसी दिन खो गया? बचपने में तो इतनी समझ मेरे में नहीं थी, तो मेरा बचपना शायद उस दिन खो गया
जिस दिन मैंने दुनिया को समझना शुरू कर दिया, दुनिया में एडल्ट हो के भी एडल्ट न हो पाने की कोशिश, क्योंकि मैच्योरिटी आई नहीं। जब ये महसूस किया तब मैंने खो दिया। क्या मैंने तब खोया अपना बचपना? जब मैंने लोगों को लव की बातें करते हुए सुना, लव का उपदेश देते हुए सुना और देखा कि उनके कार्यों में कहीं लव नजर ही नहीं आता है। क्या ये वो दिन था जब मैंने बचपना खो दिया? When did my childhood go? आखिर ये मेरा बचपना कब गया? Was it when I found my mind was so really mine? क्या मैंने उस दिन अपने बचपने को खोया जब मैंने ये महसूस कर लिया कि ये जो मेरा माइंड है वो एक्चुअल में मेरा ही है? क्या जिस दिन मुझे महसूस होने लगा कि मेरे पास दिमाग है, आप में से सबको महसूस होता नहीं कि आपके पास दिमाग है? एग्जैक्टली होगा, महसूस हो गया होगा। अच्छा, जिसको नहीं हुआ होगा बुरा मत मानना, क्योंकि आप बड़े नहीं हुए अभी, है ना? और जिसको महसूस हो गया है वो खुश हो ना कि है आपके पास। सबके पास नहीं होता भाई। तो चलो ठीक है, अगर आपको महसूस हो गया तो अच्छी बात है, नहीं होता तो भी अच्छी बात है, क्योंकि अगर नहीं हुआ है महसूस तो आप बचपने में हैं, और महसूस हो गया है तो आपके पास है, गुड, आप खुश रहिए। तो कहने का सेंस ये है कि क्या ये वो दिन था जब मैंने बचपना खोया, जब पहली बार मुझे मालूम चला कि मेरे पास है दिमाग। क्योंकि जब तक ये दिमाग की नहीं सुनते, हम लोग दिल की सुनते हैं ना, वो बचपना होता है। जब तक हम दिल की सुनते रहेंगे वो बचपना रहेगा, क्योंकि बचपने में कोई रीजन नहीं होता था, है ना? कोई कारण नहीं होता था, बस हाँ कर दिया, आया मन में कर दिया, ना अच्छा सोचा ना बुरा सोचा। पानी में भीगने से पहले बचपन में कितनी बार सोचा होगा कि यार सब भीग जाएंगे, बीमार पड़ जाएंगे? नेवर ना। और आज थोड़ी सी भी ठंडक बढ़ जाती है तो सोचते आज ना नहाए क्या यार, बीमार पड़ जाएंगे। दिस इज माइंड ने वर्क करना शुरू कर दिया, काम करना शुरू कर दिया ना। इज इट द डे? तो क्या सच में ये वो दिन था जब मैंने अपना बचपना खो दिया? टू यूज विच एवर वे आई चूज, टू यूज विच एवर आई चूज। यहां पर देखिए क्या खूबसूरत इन्होंने इंटरनल राइम का यूज किया हुआ है। मैंने आपसे पहले भी डिस्कस किया था। इंटरनल राइम, इंटरनल राइम होता है जब एक ही लाइन के वर्ड्स लास्ट वाली वर्ड के साथ राइम मैच कर जाते हैं। जैसे इसमें देखिए टू यूज और लास्ट में दिया है चूज। यूज चूज का जो साउंड मैच कर रहा है एक ही लाइन में है, इसको हम लोग इंटरनल राइम कहते हैं। तो कहते हैं टू यूज विच एवर वे आई चूज। जिस दिन मुझे लगा कि मैं अपने दिमाग का जैसा चाहता हूं वैसा यूज कर लेता हूं। मेरा दिमाग दूसरों को काबू में नहीं आता है, क्योंकि मेरा दिमाग हो गया ना, अब मैं अपने अनुसार काम करने लगा। तो जिस दिन मैंने अपने दिमाग की सुननी शुरू कर दी, जिस दिन मैंने दिमाग को अपने अनुसार यूज करना शुरू कर दिया, क्या उस दिन मैंने अपना बचपना खो दिया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। क्या उस दिन जब मैंने उन थॉट्स को प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, जिस दिन मैंने उन विचारों को सामने रखना शुरू कर दिया, दोज दैट ऑफ नॉट ऑफ अदर पीपल, जो एक्चुअल में दूसरे लोगों के नहीं थे। बचपन में क्या होता था? बचपन में किसी ने कह दिया कि ग्लास नहीं है, ये कप है, तो हमने कप कह दिया। तो हमारे पास तो अपना रीजन था ही नहीं ना। लेकिन जब बड़े हो गए तो ग्लास को किसी ने कहा ये कप है, तो क्या हमने माना? नहीं माना ना। क्यों? क्योंकि उस बात को कहने के लिए हमारे रीजन ने हमें अलाउ नहीं किया। तो क्या वो दिन था जब मैंने ये बात खो दिया, ये महसूस करना बंद कर दिया कि मेरे पास भी दिमाग है और मैं दूसरे की बात को नहीं मानूंगा? तो क्या उस दिन मैंने बचपना खो दिया? प्रोड्यूसिंग थॉट्स, मैं खुद अपने थॉट्स प्रोड्यूस करने लगा, दैट वर नॉट दोज ऑफ अदर पीपल। ऐसे थॉट्स जो दूसरे लोगों के नहीं थे, बट माई ओन, माइन एलोन। क्या खूबसूरत लाइन था, बट माई ओन, माइन एलोन। ये केवल और केवल मेरे थॉट्स थे, और सिर्फ,
मेरे थॉट्स थे। तो क्या जिस दिन मैंने अपने थॉट्स देने शुरू कर दिए, जिस दिन मैंने अपने विचार देने शुरू कर दिए, जिस दिन मैंने महसूस करना शुरू कर दिया कि ये बात सिर्फ मैं कह रहा हूं, मेरा दिमाग कह रहा है, क्या उस दिन मैंने अपना बचपन खोया? वॉज दैट द डे? क्या ये वो दिन था जब मैंने अपने बचपन को खो दिया? बचपने को खोने का गम तो बहुत होता है, समझ में नहीं आता खोया कब। कब बचपने से बड़े में चले आए, कब नादान से समझदार हो गए, कब इमेजिनेशन की दुनिया से रियलिटी में आ गए, कब हार्ट की सुनने के बजाय ब्रेन की सुनना शुरू कर दिए, समझ में नहीं आया। कब लोगों की तरह अपनी मासूमियत को खो करके एक फॉल्स फेस के साथ रहना शुरू कर दिए, मालूम ही नहीं चला। कब बचपने को खो दिए, किस दिन बचपने को खोया, यह एहसास ही नहीं हो पाया। वेयर डिड माई चाइल्डहुड गो? कहां गया मेरा बचपना? इट वेंट टू सम फॉरगॉटन प्लेस। ऐसा लगता है शायद ये मेरा बचपना किसी फॉरगॉटन प्लेस में चला गया है, किसी ऐसे जगह पर चला गया जिस जगह की याद मुझे नहीं आ पा रही है। वो जगह है बट वो जगह कहां है? फॉरगॉटन, मैं उसको भूल गया हूं। That's hidden in an infant's face. Point. ये मेरा बचपना कहां गया जहां एक इन्फेंट का मासूम सा चेहरा दिखता है ना, उस मासूम से चेहरे में वो बचपना चला गया। और मासूम सा चेहरा आपके बड़े होने पर भी अगर है तो आपके पास बचपना है, और आपके पास वो मासूम चेहरा बचपने में भी नहीं है तो आपका बचपना खत्म हो गया। तो बचपना गया कहां? बचपना उस मासूम से बच्चे के मासूमियत भरे चेहरे को जब हमने खो दिया ना, जब हम इस दुनिया के आदमी हो गए, जब हमें दुनिया समझ में आने लगी, जब हमें वर्ल्ड समझ में आने लगा, जब हमें यह समझ में आने लगा कि क्या राइट है क्या रॉन्ग है, जब हमें समझ में आने लगा लोगों का डबल डायमेंशनल बिहेवियर, जब हमें समझ में आने लगा कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या अच्छा है क्या बुरा है, जब हमने समझना शुरू कर दिया कि उम्र के साथ चीजों का आना जरूरी नहीं होता है, जब हमने समझना शुरू कर दिया कि अब मेरे पास अपना ब्रेन है, मैं खुद अपने दिमाग का यूज करूंगा और थॉट्स मेरे अपने हो गए, तब जाकर मैंने महसूस किया कि किस तरह से मेरे थॉट्स जो थे वो मेरे होकर के मेरे अंदर के चाइल्डहुड को फॉरगॉटन करा देते हैं, भुला देते हैं। तो मेरा बचपना तो बचपन वाले चेहरे के साथ खो गया। दैट इज एपिग्राम। मतलब इन्होंने क्या कहा? बचपना कहां खोया है? बचपन वाले चेहरे में। आप समझ रहे हैं ना विरोधाभास है कि नहीं? बचपन वाले चेहरे में, इन्फेंट्स फेस में मैंने अपना चाइल्डहुड खो दिया। एक्चुअली जो एंटीथेटिकल आइडियाज होते हैं, आत्मविरोधी बातें होती हैं, जबकि कोई एंटीथेटिकल आइडिया देने वाले वर्ड नहीं होते हैं, तो हम लोग कहते हैं वो एपिग्राम है। इसीलिए मैंने कहा था इसमें एपिग्राम का यूज किया गया है। कितनी बड़ी बात कहा कि बचपना तो हमने वो चाइल्डहुड वाले फेस में ही खो दिया था। दैट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स चाइल्ड। जहां हमने उस इन्फेंट चाइल्ड के फेस को खोया, वहीं पर हमारा बचपना खो गया। दैट्स ऑल आई नो। और यही सब कुछ तो हमें मालूम है। हम क्या जानते हैं जिंदगी के बारे में? जिस दिन हमारे पास से हमारे बचपन वाला चेहरा हमसे खो गया, उसी दिन तो हमने अपना बचपना खो दिया। और ऐसा खोया कि वो दोबारा तो हमें मिल नहीं पाएगा। ऐसा खोया कि वो कभी हमें मिल नहीं पाएगा। कई जगहों पर पोएट ने बड़ी पॉइंटेड बातें कही हैं। नेचुरल है, बहुत डेप्थ में यहां नहीं जा सकते हैं, बट इतनी डीप में जाके बातें कही कि बचपना खोया कब? जब हम दुनिया के लिए समझदार बन गए तब हमने बचपना खोया। जब हमने दुनिया के ये जो डबल चेहरे होते हैं, डबल फेसेस होते हैं, उनको देखना शुरू कर दिया, महसूस करना शुरू कर दिया, तब हमने खोया। क्या जब हम भी दुनिया की तरह ही अपने आप की सुनने लगे, अपने दिमाग की सुनने लगे, अपने दिल को किनारे रख के काम करना शुरू कर दिया, तब हमने बचपना खोया?
बचपना तो शायद, जैसे इन्होंने लिखा, बहुत खूबसूरत लाइन लिखा कि इट्स हिडन इन एन इन्फेंट्स फेस। जो मेरा बचपना है वो तो इन्फेंट के फेस में हिडन हो गया, छुप गया। क्योंकि ये जो फेस है ना हम लोगों के पास, ये फेस नहीं बदला है, ये फेस तो वही है, चेहरा तो वही है, हम बड़े हुए हैं। तो जो बचपन वाला चेहरा है ना, इसके पीछे छुप गया है, हिडन। इसीलिए एपिग्राम है, समझने की कोशिश करिएगा। ये जो बचपन वाला चेहरा है इसके पीछे छुप गया है, कभी कभी ये सामने आता है। कभी कभी ऐसा जब लग जाता है कि किसी को अगर आप तकलीफ में देख रहे हैं और ये बिना सोचे कि सही है गलत है, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, जब आप उस काम को कर जाते हैं तो आपका बचपना एक्चुअली वहां एक्टिव हो जाता है, आपका ये एडल्टहुड नहीं होता है। तो कब आप बचपने को खोते हैं? जिस दिन आपने बचपन के एहसास को खत्म कर दिया, उस दिन आपने बचपना खोया। बचपने खोने को आपकी उम्र से कोई रिलेशन नहीं होता है। फिलहाल आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। विल कंटिन्यू विद द नेक्स्ट पीस फॉर द कोर्स। That's all from me. Thanks a lot for watching. Keep watching, keep learning, and keep working hard. Thank you very much.